Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you to today's session under the Cisco's Women Internship Program. We are truly excited to have such an enthusiastic audience with us today. This session is specially designed for the second year students, focusing on OAs, interviews, and smart strategies because navigating internships doesn't have to be confusing when you have the right guidance. Today, we are privileged to host a fireside chat with the presidents where we will gain real insights, honest experience, and practical advice straight from those who have been there and done that. Please join me in welcoming our distinguished speakers, Ananya Bhardwaj and Joysa Jain, who will be sharing their journeys, challenges, and learning with us today. So sit back, take notes, and feel free to engage because this session might just push you need towards the dream internship. Let's begin. Niyati, I think the slide is. Yeah, sure. Yeah. Hi, everybody. Hello. Yeah, we can move to the next slide. Hi, guys. So let's just start with discussing what CWIP is. CWIP, as you all know, is the Cisco Women Internship Program. It is a 8-week paid internship opportunity which you get after your second year, and it is an only on-campus opportunity. Cisco visits specific colleges every year for this opportunity, and the eligibility is fourth sem. All branches are allowed, and there should be no active backlogs. I think somebody from MCA messaged me. I don't think MCA or BCA students are eligible for this program. This is for BTech second year students. And as you know, a lot of companies for second years have passed Google, Uber, and Cisco comes in at the right time. And I would say Cisco is a very good opportunity for you to get into a product based very good company, and it will only get harder as you go. For third year or placements, Cisco gets difficult to crack. Yeah, I would pass it on to Joysa to discuss about the OA. Yeah, hi. First of all, so glad to see the audience which we have today with us. Thank you all for joining, and we are hoping to see a lot of you with us Bangalore this summer. Can we move on to the next slide? Yeah, so if I talk about the online assessment, one thing which was a plus point for us that no resume shortlisting was done. Unlike Google, there was a resume shortlisting at our time, so that cut our chances to just give the OA as well. But in Cisco, no resume shortlisting was there, and almost everyone was eligible to give the online assessment. It was for 90 minutes, and we had two sections. One section was MCQs. There were 45 questions, aptitude based as well as CS fundamentals. And if I talk about the DSA section, we had easy to medium level of questions. And if I correctly remember, the topics which were asked were linked list and stacks. And Blackboard's का भी था एक question शायद. right. And one thing which is very interesting here is we weren't supposed to write the whole code. Instead, we were asked to debug the solution. So it was something even we were very new to, right? But since we are here to advise you, you can quickly brushing up your skills in the debugging part as well. Like you need to tell what is wrong in the code and how will you be able to pass all the test cases. The language which was given was C. So yeah, it does poses a drawback for students who use Java, but it is what it is. They gave us the option to only code in C. The code was given in C. So that was something about the online assessment. One important thing, they wanted us to be accurate as well as quick because it was time based, right? It's not C++, it was C, but C and C++ comparatively have a similar syntax. Like if you know C++, तुम C के कर लोगे decode. Java थोड़ा different हो जाता है, जो कि मैंने अपने friend से सुना है, उनको थोड़ी problem आई थी इस चीज में. So yeah, that was all about the online assessment. Yeah, Niyati, I think we can move to the next slide.
Okay, so after the online assessment, I think 12 or 13 of us were shortlisted for the from our college. 14th. 14 of us were Yeah. shortlisted for the interview. And I think overall around 3 to 400 students from all other colleges were shortlisted. And then we all were invited to a WebEx community where all the chats and interviews were scheduled. And another thing was that these interviews were completely like the interview did not know your college, your name, your CGPA. The entire section, the top section of your resume was wiped off. You couldn't tell your name or your college in your introduction. And that is a beautiful thing about Cisco. There is no bias during the interviews. And talking about the first interview, it was a core technical interview, and obviously DSA is asked. I would You can prepare easy to medium from Striver, and the important topics were arrays, linked list, stacks, queues, and trees. DP graph, I would say you should know all the concepts. जैसे topological sort होता क्या है, at least you should know that. But there are less chances कि तुमसे code कराएंगे. But I would still suggest be prepared for that. But if you haven't finished उससे पहले का, I would really suggest to prioritize that. And also after the OA happened on 10th Feb, and I think by 14th Feb, the results for the interviews were out. So you will have around 4 to 5 days to prepare everything, DSA, CS fundamentals. So I would really suggest to prepare from today because it gets a little difficult to prepare everything in 4 days, including subjects like CN. And if you have a people do have a hand at DSA, but still CS fundamentals and everything. And DSA, of course, you need to revise all the important concepts. And then there were project and resume based questions. You need to know all the projects in depth, and any question can be asked based on that. And of course, CS fundamental are very important for Cisco. And Cisco, being a networking company, asks CN a lot. So you need to know every question of CN, at least all the standard ones. And I think this is a very common doubt between the second years ki CS fundamentals kahan se karne hain. And I think Joyce will be covering that in the next slide. From me, in my interview, in the first interview, I had questions on linked lists, stacks, and arrays. And I had a lot of questions on my projects. Like he went on to say, कि हाँ ये क्यों किया, वो क्यों किया. So you need to know कि हाँ तुमने exactly ये क्यों किया and what were your shortcomings and how to prepare that. You can use the STAR method to explain your projects. I think that is something which everybody advises. So prepare your resume really, really thoroughly. Yeah, I think Joyce can also share her experience. Yeah, yeah. So I think you almost covered everything, but some of the points which I wanted to add were, in when we were back in our second year, we had 5 days. We are not sure if you guys are going to have that amount of time period or not. So it is just better to be prepared as soon as possible and to the top mark. Like जितनी जल्दी कर सकते हो प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट. ये मत सोचना कि हमारे लिए 5 दिन का गैप था तो तुम्हारे लिए भी होगा. We never know. Cisco came for the very first time. They launched this program CWIP at our time. So अभी चीजें different भी हो सकती हैं. Secondly, I'll tell you about my core technical round. So I was grinded a lot on operating systems. Surprisingly, like of course, CN was the part of every conversation, but he also grilled me a lot on operating systems. He went deep inside कि kernel क्या होता है, काम कैसे कर रहा है, what is CPU scheduling, क्यों चाहिए, and he also asked me questions about C. I remember him asking me about macros and a term which we use in C. So it is very advisable if you can just brush up your C skills as well. Apart from this, projects and resume based questions were asked from me as well. And he was more interested, like, why was the need to build that particular project which I did? Like, what occurred in my mind to build it? And I think the way you answer depends a lot, like how you have built the project. So you need to answer it in a very exquisite way. Apart from this, if I talk about graphs, my interviewer asked me about certain common algorithms of graphs as well, because if you have studied CN, in the routing section you guys have certain algorithms of graphs. So just quickly brushing those up as well. Yeah, that's it from my side. Yeah, I think we can move to the next slide, Nidhi.
Yeah, so the CS fundamentals we are all aware of. We have four subjects mainly: computer networks, operating system, DBMS, and OOPS. And some of the resources are already being mentioned in the slide. कि कहाँ से तुम ये सब कर सकते हो. Apart from this, for CN, I have some notes which I will be sharing in the doubts group. In fact, Ananya also has some notes. So we will be sharing all of them in the group as well. बट जस्ट मेक श्योर कि कुछ भी तुम रट नहीं रहे हो और आई मीन बेसिक समझ रहे हो कि कैसे क्या चीज हो रही है. क्योंकि क्वेश्चंस वर नॉट कि कोई रट्टाफिकेशन, कोई उसने मुझसे डेफिनेशन पूछ ली, नहीं. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू हॉट्स, लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. आई रिमेंबर हिम आस्किंग मी कि अगर तुम्हारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारे लैपटॉप से, सो व्हाट ऑल वेज डू यू थिंक यू आर गोइंग टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम. जो भी तुम्हारे दिमाग में है तुम बता सकते हो. सो आई जस्ट वांट टू टेल कि प्रैक्टिकल जो भी जहां पर भी हमारी यूज हो रही हैं चीजें, दे आस्क दैट अ लॉट. So these are some of the resources you can quickly go through. CN में फॉर एग्जांपल जनरली लोग याद करते हैं कि हाँ ये लेयर ये काम करती है, ये लेयर ये काम करती है, बट फॉर मी ही आस्क्ड कि अच्छा ये वाला काम कौन सी लेयर करती है. सो आई गॉट अ लिटिल स्ट्रगल विद दैट. तो आई वुड से कि जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स है उनको तो बहुत अच्छे से करना, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि सिर्फ तुमसे ये पूछ लेंगे कि टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस क्यों क्या होता है. वो तुमसे ये पूछेंगे कि अच्छा यूडीपी अगर स्लो तक हो तो क्यों यूज करते हैं उसको. So that is something he will ask. So I would say focus on application more than just memorizing everything. And I think so these were the notes which were shared to me exactly just before my interview for Cisco. And these notes actually have all the subjects, not just CN. It's just one PDF of 71 pages, and it has CN DBMS OOPS OS. It is a very good resource for revision just before your interview. It has all four subjects, but don't just read these. I would say कि थोड़ा in depth पढ़ लो. Geeks for Geeks and all resources we've mentioned, Nesso, Gate Smashers, and other playlists as well. DBMS में I was not asked SQL queries, and I don't think the five of us faced any SQL queries, but still good to know. Yeah, I think Sorry to interrupt. I guess meet full हो गई है. मुझे एक बार दूसरी लिंक प्लीज शेयर कर दो. I'll share with my group. I think Techniques unofficial पे shared है meet to मेरे को एक बार पर्सनली भी भेज दे. And we'll take the doubts at the end. ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो. Yeah, thank you. ठीक है, we can move forward. Should I move to the next slide? Yeah. Yeah, so talking about the round two, it was a managerial plus technical round. Now, for a lot of companies, this round does not include DSA or other technical questions. But I think for the both of us, it included a lot of technical questions. And in fact, it was a rapid fire of a round. They just kept on shooting a lot of questions. This is a very difficult round. And I think a lot of students were eliminated. Of course, there was elimination in round one too, but a lot of students got eliminated after this round, and this was the final round where you finally got into the internship. So this is a very crucial round, and I would just say be very confident while answering everything. And for me, of course, they will not ask you to code in this round, but they will ask you approaches, and they will ask everything which is possible about your resume. So be in depth with your projects. Your CS fundamentals should be very good. They will ask DSA verbally, and obviously they'll judge you based on your communication skills. For me, I was asked a puzzle as well, about a cake cutting puzzle. So if you think you have time or you're getting bored, so Insta scroll करने से better you can solve GFG पे interview bait या GFG पे you can practice puzzles as well. बहुत सारे puzzles होते हैं. बाकी कंपनीज के लिए भी जैसे गोल्ड सैक्स वगैरह भी बहुत पूछते हैं puzzles. So you can practice puzzles also from नेट. आई थिंक आते भी रहते हैं बहुत ज्यादा, अपना कॉलेज वगैरह भी डालता रहता है. सो यू कैन प्रिपेयर दैट. And yeah, that was for me. Joyce, can also share anything.
एक्चुअली मेरे मैनेजर राउंड में मेरे से क्वेश्चन कोड भी कराए थे, ठीक है? Oh, सो इससे ये सीख मिलती है कि प्लीज बी रेडी फॉर एनीथिंग। आई वाज आल्सो वेरी चिल कि ठीक है, टेक्निकल राउंड हो गया है, मैनेजरियल राउंड में वी विल जस्ट हैव अ इनफॉर्मल टॉक एंड कन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स। बट नो, दैट वाज नॉट द केस एंड ही आस्क्ड मी टू कोड टू क्वेश्चंस एंड वन वाज पासवर्ड जनरेटर एंड अनदर वन वाज डोमेन मैपिंग, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। So I mean, it went pretty well, but all I'm saying is be prepared for anything. You need to keep your preparation top notch. कुछ भी हो सकता है. Also in this round, जो एक्चुअल में आपका मैनेजर होगा इंटर्न पे जाके, वही आपका लेता है इंटरव्यू, लाइक फॉर अनन्या एज वेल फॉर मी। तो हमारे मैनेजर्स ही हमारे राउंड ले रहे थे एंड डिपेंडिंग अपॉन वो किस टीम को लीड कर रहे हैं, उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं। Like my manager was from cyber security team, so he was focusing a lot on that particular domain about firewalls and how things work and what was the use of it all. So that is something which you can search about your interviewer as well, कि वो किस field में उसका expertise है, ताकि तुम थोड़ा उसके पसंद की बातें भी कर पाओ। These are some of the things जो so हर कोई नहीं बताएगा तुमको। he got the list इंटरव्यू के टाइम पे व्हेन यू गेट शॉर्टलिस्टेड वेबएक्स पे यू गेट द लिस्ट। तुम्हें नाम पता चल जाएगा अपने मैनेजर का। तुम्हारे मैनेजर को तुम्हारा नाम नहीं पता चलेगा, बट तुम्हें अपने फर्स्ट इंटरव्यू अपने सेकंड इंटरव्यू दोनों का नाम पता चल जाएगा। एंड आई रिमेम्बर मैंने तो काफी स्टॉक करा था दोनों को लिंक्डइन पे। मैंने देख लिया था कि अच्छा ये मतलब फ्रंट एंड का नहीं है तो ज्यादा है, फ्रंट एंड के क्वेश्चन वगैरह तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती मैं। तो Yeah, ये सब चीजें कर सकते हो तुम भी। मतलब ऑफ कोर्स पैनिक में इंसान कुछ तो करेगा। तो I think this is one of the main insider tip which we can give. हाँ ये तो हाँ तुम्हें पता चल जाएगा अपने मैनेजर और अपने इंटरव्यूअर का नाम एंड उनके बारे में तुम देख सकते। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तुम्हें आइडिया नहीं मिल जाएगा, बट यू कैन स्टिल सी कि हाँ कौन सी टीम से है। यू कैन अगर Exactly. सिक्योरिटी से है तो तुम थोड़ा सा पढ़ लो कि फायरवॉल क्या होता है, क्यों यूज होता है, ये सब चीजें। Yeah, I think Exactly. that's it. Round 3 had just the joining date, interview experience, and stipend, etc. Yeah, we can move. Okay, so talking about the resume, as I told you, resume mein they remove the top section of your resume. They remove your name, college, CGPA, everything, and you don't even have to introduce your name. तो अपना introduction कुछ मेरे को याद है, I asked this question to my senior कि दीदी नाम, college, CGPA सब तो हटा दिए, introduction में मैं क्या बोलूँ? So I think you can focus on your projects and what tech stacks do you have and create a very good introduction. And उसके अलावा I think they will ask you to upload another resume, removing everything. So usme I would suggest make sure that you have added your coursework, which includes all the CS fundamentals, especially computer networks वगैरह। क्योंकि देर इज नो चांस कि अगर तुम इंटरव्यू को बोलोगे ना कि हाँ मैंने मेरे कोर्सवर्क में अभी सीएन आया नहीं है, तो तुमसे सीएन के क्वेश्चंस तब भी पूछेगा ही। देर इज नो वे यू कैन गेट इनटू सिस्को विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सीएस फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड DSA is of course important। इन दोनों चीजों के बिना तो you can't get into any product based company for that matter। Apart from that, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स पे फोकस करो। बहुत बच्चों ने बोला था कि दीदी कोई इंटर्नशिप नहीं करी, what can we do? I'm sure at least IGGTU students did an internship in college. You can add that, but I would really suggest add something. Even if you have unpublished research papers, add that. It's okay to have unpublished research papers, but you get to talk about something in your interview, which is a very good thing. And in case you have not made your resume properly, you can search on Overleaf. These are 3 templates which I found very useful. Any 3 of them, all 3 of them are very good. And apart from that, you can check your ATS score. I think 60-70 ke upar is good, but resume shortlisting hai nahi, so you don't need to worry about the ATS score that much. Focus on matlab your projects, your internships, and everything. Yeah, that's about it. Anything you'd like to add, Josa? Yeah, one thing I wanted to say that if अगर तुम्हारे पास experience नहीं है internship का, तो make sure your project section is well enough कि तुम उस पे बात कर सको। You need to sell yourself in an interview. You need to tell what is that quality in you, why should they hire you. तो जितना तुम अपने बारे में बता सकते हो, जो जो चीजें जहां पर भी तुमने कुछ भी करा है, you need to tell them. One important thing is that
मतलब बहुत repetitive introductions मत करो. Try to prepare your introduction in a unique way so that you get an edge over others. सब GPT करके एक टाइप का introduction निकालते हैं, वो मत करो. थोड़ा मतलब अगर कुछ भी input तुम अपना डाल सकते हो, it will certainly give you an edge. So please try to do that. One more thing I wanted to add, in the last round, which was the HR round, they also asked, why do you choose Cisco? So it is very important that तुम थोड़ा सिस्को के बारे में पढ़ के भी जाओ. Not only about Cisco, जिस भी कंपनी में you are applying, try to figure out a few things about the company, the culture, the work experience, and why do you want to be there, be in that company, so that you are prepared enough to answer this question as well. Yeah, I think that's it. Yeah, I think we can move forward. So perks and benefits, we got 50,000 a month stipend, and obviously exposure to real world, and we contributed to some wonderful projects. We understood कि कैसे corporate में काम हो रहा है, क्या क्या problems आती है, and how to solve them, कैसे corporate में बात करनी है, मतलब कैसे रहता है proper system, what is it. And the most wonderful part of our internship was the pre-placement internship offers. The conversion rate at Cisco is pretty amazing, trust me when I say this. आज के टाइम पे लॉयल्टी वाली कंपनीज ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट टचवुड सिस्को हैज बीन वेरी लॉयल एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट कन्वर्जन रेट. एंड थर्ड ईयर में यार बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि इंटर्न के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती. So they do give PPI, that is a good thing about them. You should definitely focus on it. Also, जब ऐसी सैलरी आती है फर्स्ट टाइम ना तो बड़ा अच्छा लगता है. So no matter कोई Joyce and we were roommates back in Bangalore. I remember सुबह salary credit होती है and I just shouted कि भाई salary आ गई, and it's the best feeling in the world. And best feeling. you're Yeah. 19 and you get your salary credited, it's just another feeling altogether. And I Yeah. would just like to add that we were just like you thinking कि ये भी नहीं but you have to work hard because it will only get tougher. If I were to mention this, third year mein the OA was very 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 hard. It in fact trended on Twitter कि Cisco का OA तो क्या ही आया था. And after the OA for third years, only 3 people were shortlisted for the interview, which is a very sad situation. And out of the 3, only 1 was converted. So if you are targeting Cisco, I would really really suggest कि तुम मतलब सेकेंड ईयर में दिस इज योर चांस. अभी मत सोचो कि यू आर लेट, तुम फंडामेंटल्स नहीं करा है. सिक्स फंडामेंटल्स हो जाएगा, जस्ट पुट इन द वर्क. रिसोर्सेज वगैरह सारे अवेलेबल है नेट पे. यू नो द रोड मैप, यू कैन डू इट. वी वर just like you thinking कि ये नहीं होगा, but we did put in the work and like we are here. So yeah, you can do that. Yeah, I think we can move to the next slide. Okay, so the internship experience, both of us had very cool projects, very different projects, but very cool indeed. And of course, you get to work in the industry and you understand कि वहाँ पे कैसे projects की ज़रूरत पड़ रही है. There are team outings, games, and a lot of fun. It is very, very fun. And you get mentorship and continuous feedback. Every intern has a buddy and a mentor to guide them. So that is of course there. If I were to talk about my project, it was basically a backend project where I developed a CLI for ASIC and Slice, basically hardware utilization ke liye I developed a CLI. I think Joyce can also share hers. I really like her project. So yeah. So I worked on an independent project and it was a RAG based project. RAG is retrieval augmented generation, and it was basically a tool which I made for my team to simplify their work. And we had an presentation at the end of the internship, and everyone was so welcoming and so encouraging. I mean, the work culture at Cisco is also pretty amazing. I remember Ananya only going and playing, to be very honest. She used to come back playing. मैं तो फिर भी काम करती थी, but work culture is pretty amazing. That is what I want to tell you all. Workload इतना नहीं रहता है, so that is a good thing. ठीक है, क्योंकि भाई obviously you need to enjoy your life as well, and people are very encouraging. They want you to succeed, and they will tell you what all are the right set of questions to ask. We used to have daily stand-ups with our managers, so we used to tell what we are going to do in the coming week. So it was all very professional and it was a great experience, I would just say. Yeah. Yeah, I think
That's it. And I honestly would love to see everybody. And I remember last year हम लोग जब onboarding हुई थी हमारी, तो second year से 5 लोग IGDTU से ही थे, and it was like IGDTU. तो I just want कि 5 से ज़्यादा और हो जाए. So yeah, I think I hope that more of you, we see more of you in the True. campus. And I think we are going to be their mentors this year if they join. So So that is pretty we amazing. have second year interns in our teams. So if they are from our colleges, it will be amazing. Yeah. Also one thing we all feel very sad कि हमारा campus बहुत छोटा है और हमें मजे नहीं आते. But please go to Cisco. I think it is one of the biggest campus in Bangalore for Cisco and it is so beautiful. You have everything. Massage chair वगैरह भी होती है. बहुत मजा आता है. So yeah, it was a good कॉलेज experience. जाके फिर तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत छोटा कैंपस है and everything. नहीं एक्चुअली मेरी बिल्डिंग तो बहुत दूर थी तो मेरे को लगता था अरे यार बहुत ही बड़ा कैंपस हो गया है इतना चलना पड़ रहा है. It was good. Yeah, so we welcome any questions. Okay. Yes. Time for each section. There was no time for a specific section. Total में 90 minutes था and you will complete दोनों sections in 90 minutes. Yes. 45 questions. Distribution. ऐसे distribution specific तो नहीं था, but it was everything. Aptitude भी था, CN भी था, OS भी था, OS भी था, सब कुछ था. मतलब ऐसे exact distribution तो ऐसे वो distributed, it was in a random order, तो we don't remember कि कितने questions CN से थे, कितने क्या थे. In which 71 page PDF. Okay. I think group link भेज देते हैं एक बार. Doubts group वाला. We'll share you a link. उसमें basically we have built that group for doubts regarding to Cisco. So in that we have given the PDFs. We'll send it again and we'll share the group link in the chat. Okay, so you all can join. Where will it be available हो गया? OA online हो गया offline and the idea कि कब होगा OA? Honestly, I don't have any idea कि इस बार कब होगा क्योंकि comparatively जल्दी आ गई है इस बार. तो भी हो सकता है. Just be ready. And online हुआ था हमारा OA. ऑनलाइन हमारा हुआ था, बट हो सकता है कॉलेज तुम्हें बुला ले. कि ऑनलाइन भी होता है तो कॉलेज तुम्हें ऑन कैंपस तो बुला ही सकता है. Yes. एंड ओए के लिए आई वुड जस्ट से कि क्वेश्चंस डीबगिंग के थे, मतलब कोड के, तो वो शायद बच्चे कर भी लेते हैं, बट एमसीक्यूज में गलती मत करना. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट आई वुड से कि दैट इज द गेम चेंजर. एमसीक्यूज अच्छे से करना. क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से डीएसए करा है तो तुम कर लोगे, बट एमसीक्यूज एटलीस्ट try to be accurate and quick. Right. Criteria for selection, I think it is more time based. अगर सबका चल जाता है तो obviously वो देखते हैं किसका पहले हुआ है. तो time please ensure कि तुम जितना जल्दी कर सकते हो. Questions में accuracy, मतलब MCQs गलत होते हैं. Coding question तुम कर लोगे फिर भी. How many students got the internship? 12 of us were shortlisted. 14 of us were shortlisted for the interviews, and 5 of us finally got the. And total, I think in total, Cisco had 21 or 22 second year interns. Yeah, and it was not like कि हम अगर 14 shortlist हुए थे तो हम में से ही 5 लेके जाएंगे. We had around 100 to 150 girls from all the colleges over India, and we were shifted completely to the Webex platform. तो जैसे off campus में होता है ना, वैसे ही चल रहा था. बस कोई तरीका तो है नहीं जज करने का, because तुम्हें कॉलेज वैसे भी चला जाता है, तो they don't know your college. उनका कोई है नहीं कि IGDTU से इतने ही उठाने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे IGDTU के ही हो. तो so competition थोड़ा tough भी रहता है. हाँ, मतलब I remember looking at that sheet and ऐसे कि अच्छा डैम यहाँ पे तो IIT रुड़की के बहुत लोग हैं. True. थोड़ा एक mindset रहता है ना कि, but still it's a good experience, and if you have studied, don't think कि तुम किसी से कम हो, आराम से कर लोगे. Should we fill off campus? नहीं आएगी Cisco. This is a completely on campus opportunity. Specific colleges में ही आती है. Off campus, I think बीच में they opened, but it got closed in like 16 hours or so. So वो तो जा चुका है वैसे भी. Off campus anyways better रहता है, तो on campus ही try करो करने का. Off campus और मुश्किल हो जाएगा. On campus is the best shot you've got.
फिर भी more of C and OOPS or something else. यार OS भी पढ़ना, OS बहुत पूछते हैं. ओएस पढ़ना प्लीज। मैंने अपने टाइम पे ओएस इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी ऑनेस्टली, बट very very fortunately I was asked a basic question from OS, so I answered it. But OS पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि पूछते हैं वो OS definitely. शांभवी, actually all the 4 CS fundamentals are important. तो उसमें कोई वो नहीं है. हाँ, थोड़ा ज़्यादा important CN और OS को दे सकते हो, but सारे important है. What if we don't have good projects? Tell them in a way that they appear good. Please do this. ठीक है, ऐसा नहीं है, गुड प्रोजेक्ट्स नहीं है, तुम्हारे बताने में बहुत डिपेंड करता है. ऑल्सो अगर नहीं है तो अपने इंटर्नशिप वाला जो भी तुमने करी है फर्स्ट ईयर में उसके बारे में बात करो. जस्ट डोंट गिव देम एनी पॉइंट टू से और क्रॉस क्वेश्चन यू. यू नीड टू बी रेडी विद ऑल द आंसर्स. राइट. एंड ऐसा नहीं है कि वो तुमसे सीधे बिल्कुल ही ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं. तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अगर बेसिक भी हैं तो दे नो सेकंड ईयर में हो तुम. It's okay to not have the best tech stack on your resume, but it's important that you explain it well. They need to see that you are a learner to have, matlab, get you for the internship. How many students were shortlisted after OA? 14 of us were shortlisted. CQs. MCQs were okay. मतलब हो सकता है CN के थोड़े से मुश्किल हो, OS के भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, OS में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. एंड देखो मुझे easy to medium. honestly मुझे पता है you guys might take help from GPT and etc. तो बस ये बता दूं कि OS के न्यूमेरिकल्स GPT गलत कर देता है, तो तुम अगर कर सकते हो तो कर लेना तमीज से प्लीज. OS के न्यूमेरिकल्स बहुत गलत करता है GPT, तो पढ़ लेना. CPU शेड्यूलिंग और 1-2 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वो खुद से पढ़ के खुद से कर लेना प्लीज. Java and Python also asked. In the OA, the language was C. In the interview, for me, it did not matter. I told my interviewer कि I did not have C and I don't have a command on it. तो C++ में मैंने thoroughly code किया था. Yeah, in the interview they generally ask कि आप किस में comfortable हो, तो in that you can easily do. I did in Python, so yeah. Having just basic projects in interview is a downside. Also, should we have full stack based projects or more on AI/ML side? यार वही सेकेंड ईयर में हो, इतना वो मत सोचो कि फुल स्टैक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए. जो भी बनाया है उसको अच्छे से बताओ कि तुमने क्यों बनाया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम लगी ऐसी कि तुमने उसको बनाया, और उससे तुम्हें क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स आई उसको बनाते हुए, और तुमने उसको कैसे सॉल्व किया. ठीक है, टेक स्टैक पे उतना मत जाओ. एंड प्लीज डोंट फेक इन योर रिज्यूमे. ऐसा मत लिख देना कुछ बहुत महान बनने के लिए कि मैंने तो ये भी करा है वो भी करा है, क्योंकि दे विल आस्क यू, दे विल ग्राइंड यू ऑन योर रिज्यूमे एंड तुम नहीं बता पाओगे. सो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है. सो बेटर टू टेल व्हाट यू ऑनेस्टली. If you have a basic project, तो उसमें खुद बता दो ना कि हाँ इसमें ये शॉर्टकमिंग है और इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व करने का सोचा है. जैसे मेरे में आई रिमेम्बर आई हैड अ वेबसाइट फॉर ड्राउजीनेस डिटेक्शन रिलेटेड, तो उसमें मैंने खुद ही बता दिया था कि यॉर्निंग को डिटेक्ट नहीं करता है. सो उसके लिए वी कैन यूज अ डिफरेंट पाइथन लाइब्रेरी. तो ऐसी चीजें तुम भी कर सकते हो. दिस लाइक इंटरव्यू को पता चलता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया एक्चुअली एंड कॉपीड नहीं है कहीं से. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ओए सबको आता है until unless active backlogs है तो नहीं आएगा. But I don't think there was a CGPA cut last year, तो इस बार भी शायद नहीं होगा. बट मुझे ये याद है कि सिस्को के फिलिंग बहुत जल्दी बंद हो गई थी, बहुत जल्दी. काफी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे. फिलिंग प्लीज थोड़ा एक्टिव रहना. फिलिंग हो गई सेकंड ईयर की डेटाबेस की. अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन. So can you share some how to prepare? CS So fundament. guys, just sorry to interrupt. Just ensure you're adding in always one page resume. I also did this fault कि मोटॉक के उसके टाइम में I filled in the 2 page resume, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था OA के लिए. तो OA के लिए सिलेक्ट होने के लिए भी मेक श्योर कि 1 page वाला ही डाल रहे. हाँ, वेरी स्टैंडर्ड 1 पेज का रेज्यूमे और वर्ड कैनवा अपनी फोटो मत डालना. वेरी बेसिक थिंग्स अपनी फोटो मत डालना रेज्यूमे में. अच्छा टेम्पलेट ले लो, वी हैव मेंशन्ड सम टेम्पलेट, उसको यूज कर सकते हो. मतलब एंड अपने रेज्यूमे थोड़ा स्टैंडर्ड क्रिस्प रखना, खाली मत रखना. 1 पेज का एटलीस्ट पूरा भर देना. हाँ, उसके अलावा ओए के लिए CS प्रिपेयर कर लो.
एप्टीट्यूड क्या ही प्रिपेयर करोगे, अगर टाइम है तो मतलब आई थिंक उसके क्विजेस होते हैं, दे दो किसी साइड पे। एप्टीट्यूड ऑनेस्टली आई डिड नॉट प्रिपेयर इतना, इफ यू वांट टू प्रिपेयर कर लो फ्री टाइम है तो। CS फंडामेंटल्स इज द कोर, प्लीज डू दैट। उसके 45 MCQs हैं तो वो बहुत वेटेज लेता है। बहुत वेटेज लेता है, मतलब Please लोग सिर्फ do. कोडिंग पे फोकस करते हैं, बट True. एमसीक्यूज इज द गेम चेंजर फॉर श्योर। इन Well, सेमेस्टर फॉर सेकंड आ तो गई, अभी गूगल चली गई, उबर चली गई, मोटोर का आई थी चली गई। हमारे लिए सबसे पहले गूगल आई थी नवंबर, इस बार तो आई थिंक गूगल आई भी नहीं है, या आई है, नहीं आई ऑन कैंपस। ऑन कैंपस नहीं, ऑफ कैंपस आई थी। ऑन कैंपस ऑन कैंपस नहीं आई है इस बार। आएगी, नहीं आएगी। उबर आ चुकी है, सिस्को आएगी, उसके अलावा आई थिंक देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज, वो सब के लिए यू कैन बी ऑन अ लुकआउट। एनएक्सपी एंड जेपीएमसी आती है, जेपीएमसी की हैकाथन होती है, वो कर सकते हो। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए एक लिस्ट वील शेयर, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज, आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट। या डीएसए कर रही हूँ जावा में, सो सी अलग से नहीं मत करो, मतलब सिंटैक्स देख लो। टैक्स थोड़ा देख लो, क्योंकि हाँ, वी डोंट नो ओए में इस बार क्या होगा। हो सकता है बाकी लैंग्वेजेस अलाउड हो, बट हो सकता है कि सी राइट अलाउड हो, क्योंकि राइट। सी में काम होता है इंटर्नशिप के टाइम पे, दैट्स व्हाई दे प्रेफर सी। बट इट वाज अ डीबगिंग, वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि क्वेश्चन। तुम्हें सी पूरी आती हो, तो वाज लॉजिक, तुम्हें लॉजिक देखना था उसमें कि कहाँ गलती है एंड यू हैव टू चेंज इट। ऐसा नहीं कि तुम प्योर प्योर कोड करना है उसमें, तो हो जाता है वो, अगर तुम्हें जावा भी आती है तो। बट स्टिल थोड़ा एक बार सी देख लो, मैं नहीं कहूंगी पूरा लिखना सीख लो, डीएसए सी में स्टार्ट कर दो, बट एक बार सिंटैक्स देख लो। इंटरव्यू में वैसे भी वो पूछेंगे, तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत इंटरव्यू नहीं है, में यू कैन इट्स टेल। ओके इफ यू आर अ जावा स्टूडेंट, जस्ट टेल इट कि तुम जावा स्टूडेंट हो। बहुत सारे लोगों को नहीं आती है सी, मुझे भी नहीं आती थी। सीएसएआई में आई डोंट थिंक सी इज इवन टॉट, सो इट्स कंप्लीटली ओके। नो, इट इज DSSC में ही तो कराते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? अभी कर दो, मतलब एज सून एज पॉसिबल। हाँ, आई वुड से कि हैकाथन में कर सकते हो तो पार्ट ले लो, इवन इफ यू डोंट विन यू गेट अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट। या हैकाथॉन्स में प्लीज पार्ट लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही है, जितनी हैकाथॉन्स में यू कैन टेक पार्ट प्लीज डू, क्योंकि अभी तुम पे इतना लोड नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं है इंटर्नशिप एंड ऑल का, तो तुम इस पे फोकस करके अपना बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकते हो एंड फर्स्ट ईयर में। वो तुम ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो दोस्तों के साथ, वो खत्म नहीं होता। एक हैकाथन इज अ मोटिवेशन कि हाँ आज रात में ट्रू खत्म ट्रू करना ट्रू। है, जिस स्पीड में वो खत्म होता है ना, यू ऑल्सो डोंट नो, तो रात को प्रेशर में काफी अच्छा काम हो जाता है। तो हैकाथन से यू विल गेट प्रोजेक्ट्स, जस्ट पार्टिसिपेट इन द हैकाथन, यू विल मेक समथिंग। नहीं भी आता तुम जीपीटी करोगे, कुछ भी करोगे, यू विल गेट अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट फॉर श्योर। ट्रू। जावा एंड पाइथन एमसीक्यू नो नो, MCQ में नहीं था। CS फंडामेंटल्स एंड एप्टीट्यूड, राइट? सो जावा, पाइथन। में द लैंग्वेज वाज सी, बट एज आई टोल्ड डीबगिंग क्वेश्चन था, कंप्लीट सी में कोड नहीं था, तो इट्स ओके अगर तुम्हें सी बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेना। डॉक्यूमेंट वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन द डीबगिंग, नहीं जैसे क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, लिखा है जैसे तुम्हारा इंटरफेस रहता है वैसा ही इंटरफेस था, बस तुम्हें यहाँ पे कोड जो गिवन था उसमें चेंजेस करने थे, दैट्स इट। इंटरव्यूज So, वगैरह। Didi, for OA, we only need to prepare like the CS fundamentals, DPMS, and all, and somewhat kind of aptitude, right? फॉर द Yeah, एमसीक्यू and a bit DSA as well. यस सर। Yeah, DSA is already counted. मतलब वो तो करना ही है. हाँ, yes. हाउ मच टाइम? Interviews are Didi, for online. the CS fundamentals, can you both please tell some resources? Like I'm from mechanical, so हमारे में तो वो अच्छे से मतलब पढ़ाया तो कहीं भी नहीं जाता, but I'm not from that background. तो उसके लिए क्या resource use कर सकते हैं? वो स्लाइड पे जा सकते हो हाँ, इधर। ऑल्सो आप एक बार ग्रुप्स वो जो है डाउट्स वाला वो ज्वाइन कर लेना, उसमें वी हैव ऑल्सो शेयर्ड अ PDF, ठीक है? तो वहां से भी आप थोड़ा देख सकते हो। ये कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, उससे कर सकते हो। These were some of the channels I जी followed. जी, ये actually I late joined because meeting full थी तो इसलिए. कोई बात यू नहीं। कैन शेयर दिस PDF इन द ग्रुप ना, Mm-hmm. उसमें कवर हो I जाएगा। think we also have the recording for this session. We'll share that as well. ग्रेट, या ग्रेट। How much time did we? ओए याद नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं याद, बट टाइम खत्म होने से थोड़ा सा पहले।
एकदम ऑन टाइम नहीं, थोड़ा पहले ही करना. Pass all test cases. Wrong, because I usually watch drivers' videos and then solved it again instead of thinking of my own to learn the essay. I mean, I personally give myself 30 minutes to solve a question. And if I'm not able to, I search for hint or I go into the discussion section lead code. Video solution में कम देखती हूँ काफ़ी कि अगर मेरे से ऑप्टिमल नहीं निकल पाया at the end, then I go. करो कि तुम जीपीटी से पूरा सोल्यूशन डायरेक्टली निकाल ले रहे हो, ऐसे करो कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा कोड देके कर लो. मतलब दिस इज समथिंग चैट जीपीटी से बात करते करते सीख लो, तुम्हें और अप्रोचेस भी पता चल जाएंगी. मतलब ये गलत क्यों है ऐसे सोच सकते हो तुम. मतलब आई थिंक द राइट थिंग इज कि तुम अपनी इंट्यूशन से करो डीएससी. बट एक चीज है कि पूरा कोड कभी मत देखो, चाहे कुछ भी हो, कोड खुद ही करने का ट्राई करना. भले ही तुम चलो लॉजिक देख रहे हो, बट उसे कोड खुद करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है. पर्सनली आई हैव सीन दिस. Still open off campus, is it? I don't think so. ऑन कैंपस इज ऑलवेज बेटर, बाकी इट इज अप टू यू. अगर खुला है तो भर दो ऑफ कोर्स. ऐसा एक तो ये सेकंड ईयर जो सोचते हैं ना कि हाँ ऑफ कैंपस खुल गया, ऑफ कैंपस भरे या नहीं भरे, भर दो. मतलब क्यों नहीं भरोगे, भर दो. ऑफ कैंपस जब आएगा तो ऑफ कैंप सॉरी ऑन कैंपस जब आएगा ऑन कैंपस भी कर देना, ऑफ कैंपस भी कर दो. जहाँ से हो जाए वहां से बेटर है, बट ऑन कैंपस इज इजियर ऑब्वियसली. बट सम कंपनीज दे डू ब्लॉक ना कि आप एक ही जगह से भर सकते हो. वो ब्लॉग तब होता है जब इंटरव्यू दे दो तुम एक जगह. ब्लॉग तब होता है जैसे मान लो तुमने सिस्को का ऑफ कैंपस भरा, तुमने वहां का इंटरव्यू दे दिया, तो तुम इंटरव्यू ऑन कैंपस नहीं दे सकते. इंटरव्यू तुम एक ही जगह दे सकते हो. राइट, ओके, ठीक ये है. मतलब सिस्को का नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का बोल रही हूँ मैं. जावा एंड पाइथन नो. नो, व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट, बता दिया. सीएस फंडामेंटल्स, एप्टीट्यूड. Since you are at a very good position in society, does that help in any interview or how does that help? I am not in technical society first time over. What should I do? I totally forgot. This is one thing I think we should talk about it. Societies plays a huge role, I think, in shaping your personality, in the way you talk. Communication skills में बहुत हेल्प होती है. तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार सोसाइटी में लेने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी. प्लीज प्लीज सी इट इन दिस वे, यू आर इन्वेस्टिंग दिस टाइम इन योर सेल्फ rather than thinking कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि And, मानो ना मानो एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. एंड मैं बताती हूँ मैनेजरियल राउंड में ना तुमसे सिचुएशनल क्वेश्चंस जब पूछते हैं ना, तो व्हाट आई डू इज कि आई टेल कि हाँ बिकॉज ऑफ मतलब दिस सो एंड सो हैपेंड एंड द मैनेजमेंट लीड ऑफ दिस. तो मैं उस सिचुएशन को हेल्प कर, आई ऐड अ पोजीशन देयर. तो that just adds to a good point you can put in rather than just a chat gpt rectified answer. It has a personal touch to it कि हाँ you can mention that. and मतलब क्यों कर लो society join, you'll make friends and मतलब you'll get to know about opportunities. तुम आसपास देखोगे कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं, फिर तुम्हारा भी मन करेगा. I think what's wrong. एंड एक चीज ये भी है यार कि पर अभी तक नहीं करी, इट्स ओके. मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिसने सोसाइटी नहीं करी उसका नहीं हुआ, उसका भी हुआ ही है. तो हाँ मतलब बट एक चीज ये है कि जैसे जब आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हो, तो आप अपने आंसर देते हुए ऑफ कोर्स ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो. एंड दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु कैन जस्ट कोड, दे वांट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी हो रखी है वैसा बच्चा, कि वो समझ पाए, सिचुएशन हैंडल कर पाए और कॉर्पोरेट में सर्वाइव कर पाए. बहुत बड़ी चीज है ये. सो टेक टाइम एंड बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज. आई ऑलवेज एनकरेज माई जूनियर्स जो भी मेरे से पूछते हैं, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन सोसाइटी, and it is not a waste of time. सोसाइटी में कर रहे हो, बट ऐसा ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पीओआर में एक भी पोजीशन ना हो. मतलब एक दो से ज्यादा मैं नहीं सर्च करूंगी, क्योंकि फिर इंसान पूरा सोसाइटी में ही रह जाता है. इंटरव्यू, इफ व्हाट टू डू इन एन इंटरव्यू इफ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन. Tell them. Don't love. ओन इट अप. There is no harm and there is no shame in telling that you don't know an answer, because वो सामने से समझाने भी लगते हैं that it mean and this is the right answer to this question, and it shows the willingness to accept and learn as well. आई रिमेम्बर मेरे इंटरव्यू में आई वाज आस्क्ड जस्ट टैक्स का वो, एंड मैं थोड़ा सा अटक गई थी. तो my interviewer was really sweet, and in the end while thanking him I obviously asked a question कि आप कौन सी टीम में क्या क्या काम करते etc.
But I told him कि हाँ, this was my first ever interview, and for a lot of you, Cisco might be your first ever interview and first ever internship. So I even told him कि this was my first ever interview, and thank you for making it. Same thing I did. Exactly same thing I did. That you made it so easy for me, so it was nice. Can we switch between sections? हाँ, you can switch Yeah. between questions, sections, सब कुछ. Did you study then? Yours? We हाँ, have CNO मतलब CS fundamentals, yes, we did study. where did you study from? वो screen पे थोड़ा सा है और बाकी notes will share. See, we have just filled registration form for Cisco. So when can we expect हम the आपको क्या बता सकते हैं, जनवरी में हमने भरा था डेटाबेस और 10th फेब को ओए हुआ था, बट इस बार जल्दी भी हो सकता है. लास्ट ईयर ये प्रोग्राम पहली बार हुआ था, इस बार Yes. दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे माइट ब्रिंग इट जल्दी. लास्ट ईयर उनके लिए भी पहली बार था, तो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया था. इस बार जल्दी भी हो सकता है. बी प्रिपेयर्ड, बट हो सकता है फरवरी में भी हो. मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. हाँ. AI ML और web dev depends on your interest. इतना कुछ नहीं है, but हाँ AI is something which is blooming a lot in industries, so of course थोड़ा वो पड़ता है, impression अच्छा पड़ता है. एंड इंटर्नशिप में मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स Right. एक्चुअली वर्क ऑन AI प्रोजेक्ट्स, ये Yes, रैक बेस्ड प्रोजेक्ट्स. True, मतलब true, true. एक मैं थी शायद जिसको मिला था बैकएंड का तो अजीब सा प्रोजेक्ट, बट ज्यादातर सबको ही AI के ही प्रोजेक्ट्स मिले थे. इनफैक्ट वी वर आस्क्ड टू सी 6 month इंटर्न की प्रेजेंटेशंस, तो उनके सबके ही प्रोजेक्ट्स AI बेस्ड थे, सबके. बिकॉज दे वर पुशिंग अ लॉट स्पेशली टू इंटर्न्स कि तुम लोग एटलीस्ट AI के डोमेन में ही कुछ काम करो. एंड मैक्सिमम कंपनीज एक्चुअली कर रही हैं ये, स्पेशली True, true, true. रैग बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं. एंड इंटर्न्स के लिए देना भी उनको आसान होता है कि हाँ इसका बना दो. एंड इट इज ऑल्सो ईजियर टू लर्न इन द इंटर्नशिप पीरियड. जैसे मेरे लिए आई डिड नॉट हैव अ रैग बेस्ड प्रोजेक्ट, आई हैड अ कोर सिस्को का काम वाला प्रोजेक्ट, तो थोड़ा उनका कोड बेस समझना एंड बहुत मतलब इन डेप्थ टू द कंपनी हो जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट स्टिल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बट इक्वली गुड. बट ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वेब डेव के प्रोजेक्ट्स रखोगे तो नहीं होगा तुम्हारा. इट्स ऑल अपॉन हाउ यू प्रेजेंट. देयर इज नो बायस. मेरे टाइम पे मेरे पास सिर्फ वेब डेव के ही थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रू. आप बस अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको बताओ और व्हाई डिड यू मेक देम. मेरे टाइम पे आई हैड एआई एमएल पे आई हैड पेपर्स, 2 पेपर्स आई हैड रिटन, तो आई हैड एडेड दैट. पब्लिश नहीं हुए थे, आई हैड एडेड दैट. इट्स ओके पब्लिश नहीं हुए तो, बट आई एम श्योर मतलब तुम लोगों ने लिखे होंगे, कुछ लोगों ने ऐड कर दो, इट्स ओके. बात कर सकते हो तुम इसके बारे में. अगर एमएल ऐसे डिप्लॉय प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैड अ रिसर्च वर्क डन ऑन इट. शुड वी Internships in first year that we can tell. We both did internship from the college, ठीक है, तो वो भी अच्छी ही मानी जाती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों पे होती ही नहीं है इंटर्नशिप, तो तुम पे है, वो भी एक बड़ी बात है. एंड कॉलेज वाली आर गुड. उसमें रिसर्च पेपर लिखा था मैंने. पाइथन एमएल की इंटर्नशिप थी, उसी का रिसर्च पेपर लिखा था मैंने. आई थिंक वन गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज कि वो तुम्हें फोर्स करता है कि तुम फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लो. ट्रू. एंड रिसर्च पेपर्स पे भी फोकस रहता है, तो think, अच्छा रहता है ये सब. हाँ मतलब ग्रेडिंग होती है ना उससे, एटलीस्ट फॉर सीएसईआई दिस इज अ क्राइटेरिया कि तुम रिसर्च पेपर लिखते ही हो. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. You have to show project also or just explain, depends on the interviewer, but we weren't supposed to show the project. They just for me they asked me what it was and why I made it. Yeah, we'll listen to. What all to study for OA बताया ना. CS fundamentals, aptitude थोड़ा सा and DSA. If we haven't done CS fundamentals, how to cover resources for CS fundamentals, I guess we have shared and PDF group में आ जाएगी. Sometimes we ourselves solve DSA questions in OA, still not get selected. Is it due to some flag which may be detected even if we ourselves write? Flag detected खुद से लिखोगे तो flag detect तो नहीं होगा. Still not get selected. I mean देखो तुम खुद से लिख रहे हो बट बाकी बच्चे मे बी बहुत अच्छे से जीपीटी कर रहे हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है. तो देखो किस्मत भी है ओए में. लक भी है. ट्रू. बहुत है इस
प्लेसमेंट जर्नी में बहुत लक है एंड आई नो सेकंड इयर्स में धीरे धीरे उन्हें लगता है कि अच्छा गूगल निकल गई, ऊबर निकल गई, सिस्को निकल गई, बट इट्स ओके इफ यू डोंट गेट अ सेकंड ईयर इंटर्नशिप. मेरे बहुत True. दोस्त हैं जिन्होंने सेकंड ईयर में भी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड अ कॉलेज इंटर्नशिप्स एंड शी इज इन अ वेरी गुड कंपनी. तो इट्स ओके, मतलब डिसहार्टन मत हो. एक कंपनी आएगी जो तुम्हारे लिखी होगी एंड उसमें हो जाएगा तुम्हारा, एंड दैट विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर कॉलेज लाइफ. Yes. What are the MCQs timed in OA? ओवरऑल टाइम 90 मिनट्स था. तो वैसे पर क्वेश्चन का ऐसे नहीं था टाइम बेस्ड, और आप बैक भी जा सकते हो पुराने क्वेश्चंस पे भी. बहुत फ्लेक्सिबल सेटअप था. What to do in an interview if we don't know an answer to a question? I think we already discussed this. The कौन से topics आए थे coding DSA में? Linked list, stacks, और कौन सा था? आरएस था शायद. Arrays. थोड़े मतलब बेसिक साइड पर ही थे. अनलाइक ऊबर जैसे वो बहुत ज्यादा ग्राफ्स और डीपी पे फोकस करते हैं, जिसको सीएस फंडामेंटल्स पे उतना फोकस करते हैं, तो डीएसए ऑफ कोर्स थोड़ा लो साइड पे रहता है. बट हाँ, कर लेना प्रैक्टिस. Is every question in OA timed coding and MCQs? No, 90 minutes for both the sections. Example of debugging questions. यार exactly question तो नहीं याद, but इंग्लिश का कोई I style का think question था. deleting a node वाला question था कुछ तो. Deleting the middle of the node लिंक लिस्ट के type का question था. पर बट debug. देखो, क्वेश्चन ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगा, तो वो चांसेस तो मत सोचना कि सेम आए. But striver is enough. अगर तुम अभी कर हाँ, रहे हो तो striver. true. What were your projects before you secured the internship? So I personally added my project IG to WCT and one app dev project I made. So I added these two projects in my resume. For me, I had a website on women health. It was a very long website and one of my very dearest project hackathon में बनाया था मेरे 4 दोस्तों के साथ. So please participate in hackathons. And उसके अलावा I had a React and Python based drowsiness detection website. And I had 2 ML research papers. These 4 things. कैन यू शेयर दिस पीपीटी टू? हाँ, शेयर कर देंगे. अभी डीएसए वगैरह करना है तो हैकाथॉन्स को साइड रख दो. आई मीन ईबे की हैकाथॉन आ रही है, सो शुड आई लीव इट? आई मीन तुम्हारी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है. तुमको जो, ये पर्सनल टेक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते. तुमको अगर हैकाथॉन में जाना है तो यू कैन. बाकी अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रोजेक्ट बन गए हैं अच्छे खासे, हाँ, करो. DSA was not asked in MCQs. We had a different section for DSA. Can you please reshare the PDF once? We'll do at the end of the session. What level of DSA was asked in interviews? Easy to medium. और graphs के थोड़े known algorithms तुम्हें पता होने चाहिए. 21 days of CS fundamentals by techniques. Can I get this PDF? Didn't do it. How can I do it? अब तो खत्म हो गया है 21 days, but we have recorded some of the sessions. We'll try to give them. तो वो कर सकते हो तुम. Group link please. हो गया. Then can you drop the 71 page PDF? We'll do it. Sometimes we ourselves all day से question. ये तो I think repeat हो रहा है question, right? हाँ. किस्मत है यार, देखो थोड़ा मतलब have faith in yourself, have faith in time. हो जाएगा. It's okay. Not able to join WhatsApp group. नियति एक बार please देख लो ये वाला. AIML projects are preferred here or full stack type. No preference as such, but AI से थोड़ा तुम्हें मिलता है. We're not gonna lie about it. Or if we add society name in resume, there will be name of college also, or we should remove that also. सब remove कराते हैं भाई वो. मेरे में मैंने क्या कहते हैं? डीजी था तो जीडीजी मैंने लिख दिया था, गूगल डेवलपर ग्रुप्स. मैंने कॉलेज हटा दिया था. हाँ, तो ठीक है. जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम IGT2W सिटी था, तो मुझे वो कॉलेज सिटी करना पड़ा था क्योंकि मैं नाम नहीं लिख सकती कॉलेज का. Right. वो मतलब वो बिल्कुल देखना नहीं चाहते तुम्हारे कॉलेज का नाम. यू आर नॉट अलाउड टू टेल देम नाइदर योर सीजी. तो अगर तुम्हारी सीजी कम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीजी वो किसी की नहीं देख रहे हैं. ठीक है. बट दीदी इन एन इंटरव्यू आई एक्सेप्टेड एंड दे एलिमिनेटेड. दे वर स्वीट एंड ऑल बट रिजल्टेड इन एलिमिनेशन. आई एक्सेप्टेड दैट आई डिडंट नो. यार सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं करता ना कि तुमने वो एक क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता था तुमने एक्सेप्ट कर लिया. आई मीन देयर माइट बी बेटर कैंडिडेट्स, या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया रहा होगा. डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. इट इज अ जनरल थिंग टू से कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती है, सो इंस्टेड ऑफ ब्लफिंग जस्ट टेल देम कि मुझे इतना ही पता है अप टू नॉलेज, बट आई एम विलिंग टू लर्न. बट अगर तुम सब पे ही एक्सेप्ट करते जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू. We कोशिश say- तो करनी है आंसर देने की. बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो बोलना है कि मुझे नहीं आता और मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ.
ऐसे करके Can we start? recent Yes, in the interviews you can solve in any language completely okay. Group projects while coding. If in group projects we did vibe coding क्या? Vibe coding. codings to do then. नहीं तो मतलब पढ़ लो एटलीस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ दिक्कत कहाँ आई थी। ऐसे कोड में घुस के मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे कि ये इस लाइन का मतलब बताओ, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये फीचर कहाँ है तुम्हारे कोड बेस में और मतलब कैसे बनाया है तुमने। What is the logic behind it? थोड़ा वो पता होना चाहिए। कोड ज्यादातर ना कोड नहीं देखते हैं, बट हाँ तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। PDF sufficient for CN. कुछ सफिशिएंट नहीं है, किस्मत पे डिपेंड करता है, बट हाँ फॉर गुड प्रिपरेशन यू कैन डेफिनेटली विजिट। मतलब इतना बेसिक इतना तो करना ही है, इसके ऊपर ही जाओ, नीचे तो बिल्कुल मत जाना। हाँ, internship of first year should be only included with project of that tech stack. The internship of first year should only be included with project of that tech stack. मतलब अपनी पूरी इंटर्नशिप का इंक्लूड कर दो और अपने प्रोजेक्ट का डाल दो फर्स्ट ईयर का। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब ऐसे है क्या कि तुमने पाइथन एमएल में इंटर्नशिप करी और तुमने फ्लटर का प्रोजेक्ट बना दिया उसमें, तो उसको प्रोजेक्ट में अलग डाल दो, इंटर्नशिप में मत डालो। इंटर्नशिप पे लिख दो कि तुमने पाइथन एमएल पाइपलाइन पढ़ी थी, ईडीए पढ़ा था, जो भी पढ़ा था। To start from CN and OS, which one should I start first? अरे तो अपने पे डिपेंड करता है, बट हाँ मतलब मैं कर लो। जैसे ओएस बहुत पूछा इससे CN ज्यादा मुझसे OS बहुत पूछा था, तो अब तुम देख लो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से भी ओएस पूछा था, जॉयसी से भी सीएन पूछा था। हाँ मतलब मतलब वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्या ज्यादा पूछा, तो दोनों प्रिपेयर करो। एंड ऑल्सो अभी टाइम है तो यार दोनों ही करो ना। जब बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो देखना, अभी तो दोनों करो, स्टार्ट कुछ भी कर लो, कंप्लीट कर तो लेना। अगर मैंने 4-5 दिन में इतना कर लिया था तो तुम्हारे तो भी फिर भी क्या पता टाइम है तो कर लो। राइट। एंड हमें पता भी नहीं था कि कैसे होने वाले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी। एग्जैक्टली मतलब पहली बार आई थी सेकेंड ईयर के लिए, एंड आई थिंक हमारे कॉलेज से एक सीनियर थी जिनको सबने ही मैसेज करा था। हाँ, उन्होंने हमें बताया था कि हाँ देखो CS फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस एक सीनियर ने मुझे नोट्स भेजे थे जो मैं तुम्हें भेज दे रही हूँ, और यही उम्मीद कर रही हूँ कि वी सी यू दिस समर। ML research papers, how to start with first research paper? बताओ अनन्या। मतलब इफ यू हैव थोड़ा बहुत आइडिया भी अबाउट तो गो फाइंड अ डेटा सेट, फाइंड अ टॉपिक, उसके लिए जीपीटी करो, पढ़ो, किसी टीचर से पूछो, दोस्त ढूंढो। आई वुड सजेस्ट एक एटलीस्ट एक और को ऑथर तो रखो अपने साथ, एंड स्टार्ट विथ अ टॉपिक, फाइंड अ डेटा सेट, एंड बट इफ यू थिंक तुम्हें बहुत ज्यादा वो नहीं आता है, कोडिंग नहीं करना चाहते हो, जॉयस एंड मी रोट अ लिटरेचर पेपर कंप्लीटली, डिड नॉट हैव कोडिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि दैट यू कैन डू दैट, बट उसके लिए मतलब देख लेना टॉपिक एटलीस्ट अच्छा रखना। आई थिंक टॉपिक अच्छा होता है तो यू गेट टू टॉक अबाउट इट वेरी वेल। तो दैट्स इट। इंग्लिश लैंग्वेज सकते हैं, वुड नॉट सजेस्ट, प्लीज यूज। इंग्लिश बहुत एडवाइसेबल होती है, बट हाँ अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा मत यूज करना, थोड़ी बहुत बीच बीच में यू कैन, बट नॉट ऑल। हुआ था नहीं, ऑनलाइन हुआ था, 1 घंटे का था, एक घंटे के थे शायद। हाँ दोनों 1-1 घंटे के थे आई राउंड्स। थिंक वन वाज ऑन 19th, वन वाज ऑन 20th, तो दोनों दिन सुबह सुबह 9 हाँ राइट, कंसेक्यूटिव डेज पे थे। हाँ। So good group projects, do we only need to explain our part or the whole project? I think अपना पार्ट ही करना होता है। मैंने इतने ग्रुप प्रोजेक्ट बनाए नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब I had a group project and my project was a lot of like it had a lot of things going on, so I talked about my part of it. Yeah, I explained it very well. मैंने उसको खुद ही बता दिया था कि हाँ मैंने ये देखो, तुम इससे पूछो, उससे पहले बता देती कि मैंने ये यूज किया है, ये यूज किया है। Right, Didi, our projects were quite solid, so can they eliminate based on only your projects being small? No, 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 I don't think they do. मतलब एक्सप्लेन इट बेटर ना, खुद ही देख लो Yeah. क्या कमी लग रही है, इसको कैसे सॉल्व करोगे फ्यूचर में, ये सब चीजें। और एक बात है कि तुम खुद ही मान रहे हो तुम्हारा प्रोजेक्ट छोटा है, तो तुम बाकी को कैसे समझाओगे कि वो छोटा नहीं है? प्लीज मानो कि तुमने अच्छा बनाया है, उसको अच्छे से समझाओ, ठीक है? एंड दे विल फोकस ऑन योर स्किल्स। CS फंडामेंटल से कह रहे हैं या जो भी वो पूछते हैं, वो मेक श्योर करो कि तुम अच्छे से आंसर कर रहे हो। और ये करना कि चलो तुमने छोटा ही प्रोजेक्ट बनाया, बट एटलीस्ट उसके तुम सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओ, ठीक है? CS फंडामेंटल्स पर कितने MCQ होंगे?
ऐसे सिलेक्टिवली तो हमें पता भी नहीं है और ऐसे गिवन भी नहीं था. मिक्स्ड ऑफ 45 क्वेश्चंस बोथ एप्टीट्यूड एंड सीएस फंडामेंटल्स. फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप किसी टाइम होती है, पे करना होता है फर्स्ट ईयर की कॉलेज इंटर्नशिप के लिए, और समर में होती है, कॉलेज खुद ही बता देगा तुम्हें. बहुत सारी खुलती है, ऐप डेव की खुलती है, वेब डेव की खुलती है, एमएल की खुलती है. आई थिंक अब तो और भी बढ़ जाएंगी, हर और साल बढ़ती है. खुल जाएगी अब तो, बहुत है, देख लेना जो अच्छी लग रही हो कर लेना. दीदी वे कैन आई गेट 21 days of CS fundamental video recording. Much needed. Interview offline, online. I'll share 21 days, but सबकी नहीं होगी, थोड़ी होंगे. नोट्स वगैरह I'll try to send. नोट्स कर लो, यूट्यूब पे है यार बहुत कुछ, वन शॉट देख लो, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रहा तो. एक वो है ना, नॉलेज गेट, संचित अरोड़ा करके, उसकी वन शॉट होती है, वहां से स्टार्ट कर लो, वो देख लो. उससे तुम्हें जो जो चीजें समझ नहीं आ रही उसकी इन डेप्थ देख लो, एनएसओ से देख लो, गेट स्मैशर से देख लो. इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन. ऑनलाइन. होल सिस्को ड्राइव वाज ऑनलाइन. यस, द होल सिस्को ड्राइव वाज ऑनलाइन. Yes, online drive. I think For third year also it was online only, I guess. for third year also. They don't come. Yeah. Cisco actually has the main campus in Bangalore, and सारे बीटेक वाले तो वहीं जाते हैं. Interns सारे वहीं जाते हैं, गुड़गांव में नहीं देते interns को. Difficulty varied. ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा easy भी थे, but अलग-अलग. We worked really hard in the interview. हाँ यार, ये तो लगा था यार, ये तो मुझे भी लगा था. But मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे को वो ना, so they were धीरे-धीरे eliminating, जैसे-जैसे ना लिस्ट आती थी एक कि हाँ these following candidates have been removed. Yeah. WebEx वो, तो हमें बहुत ऐसा होता था कि पूरे दिन WebEx बैठी रहती थी. मैं, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं बैठी हूँ कि मेरा नाम ना आ जाए. True. तो आई वुड से दिख रहा था कि जो थोड़े खराब कॉलेजेस से हैं वो निकल रहे हैं विदाउट इवन नोइंग, क्योंकि वो एक इंटेलेक्ट डिफरेंस तो आ ही जाता है यार. तो हैव फेथ, यहाँ तक आए हो तो मतलब आगे भी कर लोगे. यू गाइस आर इनफ हार्ड वर्किंग टू मतलब कवर एवरीथिंग एटलीस्ट. हम सबकी 9+ CG थी, बट किसी को दिखाने का मौका नहीं मिला. तो फिर कुछ नहीं कर सकते. What if they asked about first year internship we paid for doing internship to our college, so how to handle this kind of question? ये पूछेंगे कि Don't- पैसे दिए थे कि नहीं, ये तो नहीं. they will not ask. You हाँ, तुमने don't कुछ talk किया to वो them. उसी से खुश रहेंगे. फर्स्ट ईयर में तुमने कुछ किया बस. Yes. मैक्सिमम लोग कॉलेज के साथ ही करते हैं. तुम बता दो कि हमने कॉलेज के साथ करी थी, ये नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुमने पैसे दिए, कितने दिए. हाँ, कुछ ये पूछेंगे तुमने क्या बनाया, तुमने क्या सीखा. वो ये नहीं पूछेंगे तुम्हें कितने पैसे मिले या तुमने कितने पैसे दिए, नहीं पूछेंगे ऐसे. मैं ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में कोई तुम्हें पेड इंटर्नशिप नहीं दे रहा है, अनपेड ही करोगे तुम. Yes. और कोई, आई थिंक हमने सारी कर ली कवर. बहुत इतना अच्छे से हाँ. मैं हो गया सब कुछ. Okay. Yes. Well, thank you so much for joining everybody, and I hope we see maximum students CWIP के from IGDTW. Genuinely, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी अपनी टीम में मैं हम तो बहुत डेस्परेटली चाहती हूँ कि मेरे अंडर कोई आ जाए. सेकेंड ईयर वही कोई internship section we have added a college name, should we remove that? हाँ भाई, सब remove. वो अभी नहीं, अभी क्यों हटाओगे? अभी नहीं हटाना है तुम्हें. अभी डेटाबेस में हटा के मत डालना. अभी हर जगह जब तक स्पेसिफिकली ना बोले कि हाँ सब कुछ हटा दो, तब तक मत हटाना. वो तुम्हें इंटरव्यू से जस्ट पहले बोलेंगे कि हाँ यहाँ एक ड्रॉप बॉक्स है, इसमें तुम्हें सब कुछ हाइड करके डालना है. अभी जितने डेटाबेस टीएनपी से जा रहे हैं सब में अपना प्रॉपर रेज्यूमे डालना है. CGVG सब डालनी है अभी, बाद में वो खुद बता देंगे. कुछ प्रॉपर रेज्यूमे अभी डालना है. वो इंटरव्यू से जस्ट पहले तुम्हें बताएंगे कि हाँ यहाँ पे तुम एक रेज्यूमे फ्रेश डाल दो जिसमें तुम ये सब चीजें हटा दो. दे विल इवन सेंड डॉक एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या तुम्हें हटाना है सब कुछ. CGPA factor less impactful than skills. वही है कि वो biasness नहीं रखना चाहते of any form, be it college or CGPA. They are focusing more on skills. तो skill based. Also, guys, they are mentioning for the Cisco की interview के time की बात. वैसे CGPA really impacts. Do focus on your CGPA. ये मत True, सोचो. true. CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है. CGPA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Some of the companies resume shortlisting में ही you are out if the CGPA is good. Right.
And वी look, आर ओनली टॉकिंग अबाउट सिस्को, इधर ही हुआ है, आई थिंक और किसी कंपनी में होता भी नहीं है ऐसा, इन्होंने ही करा था, बट बाकी सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इनफैक्ट नहीं, एक्चुअली कॉलेज भी लगा देता है कभी कभी बार कि 9+ जब उन पे नहीं होती जगह होगा, वो 9+ वालों को ही बैठने देता है, तो प्लीज तुम मेंटेन करो अपनी सीजी, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। लोग पूछते हैं कितना सेफ है, जितना जा सकते हो। स्काई इज लिमिट। मतलब जितनी हाई रख सकते हो, वेरी गुड। और क्योंकि अपने कॉलेज में तो रख भी सकते हो, स्काई इज द हाँ लिमिट। हाँ हाँ, अपने कॉलेज की सीजीपीए लाना इज कंपैरेटिवली इजियर, इतनी आती नहीं है लोगों की बाहर। तो हाँ, बट टू बी सेफ एटलीस्ट 8.5, 9 इज गुड, वेरी गुड, बट 8.5 तो मिनिमम रखनी चाहिए। ट्रू। बट ठीक है, नहीं भी है तो अब क्या कर सकते हो, पढ़ाई करके सीजीपीए बढ़ाओ, और बाकी भी करना ही है, डीएसए तो करना ही है, तो ठीक है। आई थिंक I think that's it. Yeah. Thank you so much, everybody, for joining. And it was an honor. We had seniors who guided us, and now we are on the other side of the table. And Feels great. wait, we hope to see a lot of you in Bangalore this summer very soon. Yes. And And you can ask your doubts in the group, okay? थोड़ा DM नहीं देख पाते हैं सब ना, तो एक बार ग्रुप में ही डाल देना। We have submitted updated ये resume. रेज्यूमे, अब रेज्यूमे वाली जो भी बात बोली है हमने, वो प्लीज जब तक तुम्हें बोला ना जाए नाम हटाओ, तब तक कुछ मत हटाना। जहां भी रेज्यूमे सबमिट कर रहे हो, कंप्लीट रेज्यूमे हैज टू बी सबमिटेड। एंड ये और किसी कंपनी में नहीं करना है, सिर्फ सिस्को में करना है। प्लीज मत बोलना हमने बोला था नाम हटाने से। हर चीज डालनी है जब तक तुम्हें स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि हाँ हटा दो। True, true, true. PMP से जो डेटाबेस जाएगा, ओए के लिए जो डेटाबेस जाएगा, वो सब कुछ कंप्लीट रेज्यूमे के साथ जाएगा। जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, उससे एक दिन पहले वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ अब तुम अपलोड कर दो अपना रेज्यूमे, जो मतलब हटा हुआ है विद मी। वेयर यू हैड दीदी, वाज देयर एनी डॉक्यूमेंट? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं था, पता है। तो जैसे नॉर्मल इंटरफेस होता है, जैसे हैकर रैंक का इंटरफेस होता है या लीड कोड का इंटरफेस होता है, वैसा ही इंटरफेस था। यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर कोड, you just had to change the code. You could also run test cases. सब कुछ नॉर्मल था, बस यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ था, that's it. डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही था डीएसए का, बस तुम्हें लिखना नहीं है, उसमें फाइंड आउट करने क्या एरर आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा कोड। एज केसेस देख लेना कि तुमने सारे इंक्लूड कर लिया, नहीं वो सब डाल सकते हो। Right. थिंक वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। Okay, guys. Thank you so much, Ananya and Joyce, for joining today's session and giving us such insights. I think the questions are never ending now. हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। लास्ट दो ले लेते हैं, इसके बाद में भेजना। ओए, डू स्पीड आल्सो इम्पैक्ट सिलेक्शन इन ओए? ऑफ कोर्स इट डज, ऑफ कोर्स इट डज, एंड एक्यूरेसी आल्सो। Speed impacts a lot. अभी सेकंड ईयर में तुमने स्पीड देखी नहीं है, तुम थर्ड ईयर में आओ, ऐसा लगेगा कि जल्दी कर देते हैं। तो मतलब मैं आई एम जेन्युइनली सेइंग इट, सेकंड ईयर में इट्स इजियर, थर्ड ईयर में जैसे जैसे निकलता जाता है ना, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। राइट, You actually have to be very quick. very quick, very quick. ट्रू ट्रू। Thanks Niyati for being such a amazing host. राइट राइट राइट, थैंक यू नियति। Thank you. दो डाउट्स और ले लेते हैं। डीबगिंग वर देयर सिंटैक्स एरर्स, और जैसे एज केसेस तुम इंक्लूड करते हो लिंक लिस्ट के कि इफ योर हेड इज नल, तो फिर वो वाला दैट यू नीड टू इंक्लूड। ऑल्सो जैसे लूप चल रहा है तो वो n तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, वैसे टाइप के डीबगिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तुम ड्राई रन करके देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या एरर आ रहा है। 10 minutes ago, can you please share the mom of the meet if possible? हाँ, I'll share that. I will share that. I have the links also, I think. In the group also, do they set to write code on notepad or paper? उसने तो मेरे को वेबएक्स पे ही वैसे बोल दिया था। I mean, I was able to edit, तो उसने मेरे को वैसे ही नोटपैड ही मान लो उस पे करा दिया। मैंने VS कोड शेयर किया था, तो आई वुड सजेस्ट कि जिस भी लैंग्वेज में कोड करते हो उसका VS कोड सेटअप रखना। जैसे C++ के लिए स्पेसिफिक सेटअप रखना पड़ता है तुम्हें VS कोड पे, तो वो रखना, क्योंकि VS कोड पे कराएंगे वो, हो सकता है। टेस्ट केसेस रन करते हैं तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है। हाँ हाँ हाँ, वैसे मेरे से रन नहीं कराया था पूरा कोड कंप्लीटली, बट ड्यूरिंग द कोड ही वो बोल रहा था कि हाँ ये वो जो भी Mom of the meet में for mom of the meet we'll share this PDF in the group. we have the recording, I think. हाँ, recording also we have. We'll share the recording also.
ठीक है. ठीक है, great. चलो, thank you everybody for joining. Thank you everyone. All the very best. All the very और best. सब अच्छा होगा. Thank you so much. Thank you. Thank you.